Welcome to EduHotel Talks. In this episode, we are going to unpack a trend that has been building really fast. That is why so many Indian professionals are choosing US CPA over Indian CA. We are guided by one and only Mr. Sushant sir. Thank you so much. It's always an honor to be here. Thank you, sir. So let's start with the obvious question, sir. Firstly, as you know, CA has been considered as the highest benchmark in India. Then why so many Indian professionals are moving towards the US CPA? Okay. So बात करते हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में पहले. It takes around 5 to 6 years to complete. There is a long strings of examination which you have to pass, and there is also an associated articleship period time जो आपको सर्व करना ही पड़ता है अपने CA के credentials को पाने के. Makes sense. As compared to the other course which we are talking about, which is US CPA. US CPA is the Chartered Accountant of the United States of America. एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स अराउंड 12 to 18 months ओनली बाय क्लियरिंग ओनली 4 एग्जामिनेशन एंड देयर इज नो आर्टिकलशिप पीरियड एसोसिएटेड विद इट. सो बेसिकली आप एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या काम करते हैं? यू मे वर्क इनटू टैक्सेशन, you might work into accounting, you might work into auditing, you might work as a statutory audit, internal audit, forensic audit, टैक्स एडवाइजर, राइट. आप इन सारी डोमेन्स के अंदर एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद काम कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड आप यूएस सीपीए बनने के बाद भी इन्हीं सारी डोमेन्स के डोर्स आर ओपन फॉर यू, द जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर ओपन फॉर यू. सो यू हैव सिमिलर सेट ऑफ जॉब्स जिसके अंदर आप सीए बनने के बाद जाते, आप यूएस सीपीए बनने के बाद भी उन्हीं जॉब्स में जा सकते हैं. यू हैव सिमिलर kind of growth prospects associated with both the course. and एक US CPA सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता. as an Indian chartered accountant can practice in India, वैसे ही US CPA can practice in USA, India and more than 150 countries. so basically एक US CPA वो सारे काम कर सकता है जो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, that too on a global level. His work is not restricted to the geographical boundaries of India. वो more than 150 countries में अपने करियर को establish कर सकता है. So if you are looking forward to build your finance, accounting, taxation career at a global level, at a global peak, आप लेके जाना चाहते हैं अपने करियर को across the borders, then I think US CPA is for you. And yes, why not people are gonna shift to US CPA? 2021 से पहले तो आपको US CPA करने के लिए USA जाना पड़ता था. अब you have the opportunity to give your US CPA exams directly from India, and it is obviously a faster and a shorter path for sure, because आप 12 से 18 महीने में US के चार्टेड अकाउंटेंट होने का क्रेडेंशियल अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं. प्लस आई थिंक आई एम वेल क्वालिफाइड to give this answer to you because I myself am a CA intern. तो मैं अपने CA intermediates की एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ and I have cleared all my US CPA exams also in my first attempt. So I exactly know what is the difference and what are the similarity between these courses because I have had a first hand experience of both these courses. Makes sense. Sir, that was very informative actually. I want to know the exam structure for US CPA. Okay. Let me not just tell you about the US CPA exam structure. Let's keep it a kind of a contrast between CA exam structure and CPA exam structure. I think that will be more useful for our viewers to listen. Makes sense. CA के अंदर there are 3 levels which you have to clear. You have to give your foundation, जिसके अंदर there are few examination. You have to give your intermediate exams. There are few examination. Yes. Then there is an articleship period, and then you give your final examination. एंड ये पूरा प्रोसेस लगभग 5 years के आसपास का है. ठीक है. अब बात करते हैं यूएस सीपीए के. यूएस सीपीए में देयर आर ओनली 4 एग्जामिनेशन व्हिच यू नीड टू क्रैक टू गेट योर क्रेडेंशियल, टू गेट योर यूएस सीपीए क्रेडेंशियल, द लाइसेंस, द चार्टर व्हिच यू नीड टू एलिवेट योर करियर टू द ग्लोबल लेवल. वो आपको मिल सकता है सिर्फ 4 एग्जामिनेशन देके, जिसके अंदर से 3 एग्जामिनेशन आर कॉल्ड द कोर एग्जामिनेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट एग्जाम किसी का देना है फिर सेकंड एग्जाम किसी का. देयर इज नो ऑर्डर इन विच यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन. यू कैन गिव एग्जाम्स इन एनी ऑर्डर यू लाइक. सो देयर आर 3 कोर एग्जामिनेशन फॉर यूएस सीपीए. वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, one is auditing and assurance, and one is regulation and taxation.
इन तीनों एग्जाम्स को आपको क्लियर करना पड़ता है, एंड एज आई टोल्ड यू ये आपके कोर एग्जामिनेशंस है. द फोर्थ एग्जामिनेशन इज बेसिकली कॉल्ड अ डिसिप्लिन एग्जाम. यू हैव अ चॉइस आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं. So basically you can either opt for your 4 exam as the advanced version of accounting or advanced version of taxation or advanced version of auditing. आपके basis, on the basis of your background, your academic background, your professional background, on the basis of your interest of knowledge, आप अपने 4th एग्जाम को चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा देना चाहते हैं. अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे को टैक्सेशन में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, यूएस टैक्सेशन में स्पेसिफिकली. सो आई गेव, आफ्टर क्लियरिंग माय कोर एग्जामिनेशंस, आई गेव the advanced level, the 4th examination I chose for tax compliance and planning, which is the advanced level of taxation. So मैंने 4th अपना एग्जामिनेशन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज किया था, जैसे आप भी कर सकते हैं. सर जैसे कि आपने अभी जो CA एंड CPA की बात करी, यू आर CA इंटरमीडिएट पास एज वेल एज फर्स्ट अटेम्प्ट CPA पासर. सो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा एग्जाम इजी है? इजी है. ओके, देखो भाई, दोनों ही एग्जाम्स इजी नहीं है. सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, इट्स नॉट इजी एट ऑल. यू गेट अ वेरी बिग क्रेडेंशियल आफ्टर क्लियरिंग दीज एग्जाम्स. तो ये एग्जाम्स इजी नहीं होने वाले. हाँ, मैंने कुछ डिफरेंसेस नोट करे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर माय CA एंड प्रिपेयरिंग फॉर माय US CPA. ओके. CA में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा लर्निंग और मगअप करना पड़ता था चीज़ों को. सेक्शन नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद करनी पड़ती थी. CPA के अंदर एग्जामिनेशंस आर सेट इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टेस्ट कि आप कितना लर्न करके आए हैं. CPA के अंदर दे टेस्ट कि आप कैसे अपनी लर्नड नॉलेज को अप्लाई करते हैं. सो इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम. दे टेस्ट यू ऑन योर एप्लीकेशन स्किल्स, नॉट ऑन योर लर्निंग स्किल्स. ये मैंने एक डिफरेंस पर्सनल लेवल पे फील करा है. आई डोंट नो किसी और को ऐसा फील हुआ हो ना हो, बट मुझे ऐसा लगा है कि CA में आई हैड टू लर्न मोर, whereas CPA के अंदर आई हैव टू अंडरस्टैंड मोर. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के कारण ही एक CPA का एग्जाम निकल सकता है, पास हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पे ग्रास्प बहुत स्ट्रांग है. आपकी ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ऑन द नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए CPA के एग्जाम्स को पास करने के लिए. क्यों? क्योंकि CPA के एग्जाम्स के अंदर सिमुलेशंस आते हैं. सिमुलेशंस क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी केस स्टडी होती है, एक रियल लाइफ, एक रियल टाइम सिनेरियो दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन. आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करके उन सिमुलेशंस को, रियल टाइम सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम के अंदर. एक और चीज बताना चाहूंगा, CPA के एग्जामिनेशंस में कई बार मुझे एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स DM करते हैं मुझे कि सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन ही लीस्ट इंपॉर्टेंस का है. क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट CPA के एग्जाम में नहीं होता. वाई? बिकॉज CPA के एग्जाम्स जो होते हैं दे आर एन AI बेस्ड एडाप्टिव एग्जाम्स. तो आपके हर CPA के एग्जाम में 5 टेस्टलेट्स आते हैं. सपोजिंगली अगर आपने पहले टेस्टलेट के अंदर कुछ गलती कर दी, स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ऑडिट का एग्जाम है और आपने उसके अंदर सैम्पलिंग का क्वेश्चन गलत कर दिया फर्स्ट टेस्टलेट के अंदर. तो AI based on the AI adaptive examination technique which AI CPA use, सेकेंड टेस्टलेट के अंदर आपको और सैम्पलिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. थर्ड टेस्टलेट्स में आपको थोड़े से और सैम्पलिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज दे वांट यू to be an expert in each and every aspect of the syllabus which they have delivered you to learn, understand and apply. So basically कि कोई भी टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं. सारे ही टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं. हाँ, कुछ टॉपिक्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होल्ड करते हैं, कुछ कम डिफिकल्टी लेवल होल्ड करते हैं, बट उनको तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन करके नोट्स बनवा के क्लास में बहुत इजीली समझा देता हूँ, ताकि उनको ज़्यादा टाइम तक हमेशा के लिए याद रहे. सर, एज पर योर एक्सपीरियंस, what kind of students you have seen switching from CA to CPA? Okay, so basically in my knowledge, in my experience which I have gained, yes, in my teaching journey, I have seen students who
are chartered accountants already and are going for now US CPA. Why? Because obviously US CPA has a global reach. जिनको अब्रॉड जाने का मन होता है, या फिर आप इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट बन के इंडियन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में एक्सपर्टीज लाते हैं, जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. बट यूएस सीपीए पढ़ के आप एक्सपर्ट बनते हैं यूएस गैप के, विच इज एक्सेप्टेड नॉट जस्ट इन यूएसए बट इन मेनी कंट्रीज. तो जिन चार्टेड अकाउंटेंट्स को अपना करियर ग्लोबल रीचेस तक लेके जाना होता है, इंटरनेशनल क्लाइंटेल चाहिए होती है, वो लोग भी यूएस सीपीए कर सकते हैं एंड करते हैं. आई हैव हैड सच स्टूडेंट्स जो सीए थे एंड अब वो सीपीए भी हैं. ऑल्सो देखिए, सीए इज अ जर्नी जिसके अंदर कई बार मतलब आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो एंड वो अपनी लाइफ में एक्सेल करें, अपने गोल्स की तरफ मूव करें. बट द हार्श रियलिटी इज कि कई बार सीए में अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, हो जाता है. I am not blaming anybody for this, neither the institute nor the students. But कई बार ऐसा होता है, you get stuck somewhere and then the life becomes very hectic and monotonous because आप कई साल अपनी लाइफ के सीए को ऑलरेडी दे चुके हैं and at this point आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब आप सीए बन जाएंगे, आप बहुत अच्छा कमाएंगे, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी, बट वो अटेम्प्ट्स लगे जा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्ड हो जाती है. I have seen such students shifting from CA to CPA because they still have an option. अगर CA नहीं हुई, किसी भी कारण अगर आप CA नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं डाल पा रहे हो, तो CPA is available for you. You have the opportunity of becoming a US CPA. Plus अब ये एग्जाम्स इंडिया से कंडक्ट होते हैं. This is 2025 now. You have the opportunity to give your US CPA exams directly from India and earn a global credential, a global certification, right? तो इस रीजन से कई CA struck students जो अपनी जर्नी को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं XYZ रीजन के कारण, वो लोग CPA के अंदर एनरोल करते हैं and I have seen them clearing CPA in a easier way. Why? Because CA requires a lot of dedication. तो CA aspirants को already आदत होती है hours and hours of study देने की, hours and hours of पढ़ाई देने की, sleepless nights, early mornings. तो इन लोगों को आदत होती है जिसके कारण CPA इन लोगों के लिए आसान होता है as compared to a BCom और MCom student. CA aspirants के लिए CPA is a bit easier because they have the essence of the curriculum already. They have the essence of the topics जो CPA के अंदर पूछे जाते हैं. So I have seen these two types of people generally enrolling for CPA. Also, if you are an MCom, if you are a CA intermediate, you can definitely go for US CPA. You are eligible to give your US CPA examinations. And अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने खुद अपने इंटरमीडिएट एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद US CPA की जर्नी को फुलफिल किया है, पास किया है सारे एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर. एंड आई हैव गेन्ड दैट क्रेडेंशियल फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ CA एस्पिरेंट्स, people who were struck in chartered accountancy, shifting their career without changing their goal. Because the goal is, पहले goal was CA, now it's CPA, but you still do not leave your dream of working in a MNC, working in Big Fours, working as a tax professional, working as an accounting, auditing professional. आप अपने उस ड्रीम को नहीं छोड़ते हैं. आपकी बस क्रेडिबिलिटी चेंज होती है, आपकी सिर्फ डिग्री चेंज होती है, आप CA की जगह CPA बनते हैं. बट जो आपका गोल था लाइफ में ऐसी जॉब को करने का, इन सेक्टर्स की, इन डोमेन्स की, फाइनेंस में एक लीडरशिप पोस्ट पे जाने का, वो आपके पास रहता है. सर लेट्स सपोज कि एक बच्चे ने CPA एग्जाम क्लियर कर लिया, what salary structure he can expect and how different it is from a CA fresher? Okay, so पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सैलरीज डिपेंड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कैसे आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, कैसे आप अपने इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं अपनी सैलरीज को लेके. बट ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, a CPA fresher can land up to somewhere around 8 to 10 LPA in India. Abroad packages are very handsomely arranged. तो आपको अब्रॉड में
इंडिया के बाहर आपको बहुत हैंडसम पैकेज अवॉर्ड किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसी सीए फ्रेशर के बारे में, तो सीए फ्रेशर की सैलरी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि उसने आर्टिकलशिप कहाँ से करी है। एक मीडियोकर फर्म से करी हुई आर्टिकलशिप के बाद और एक बिग फोर से करी हुई आर्टिकलशिप के बाद सैलरी में डिफरेंसेस ऑब्वियसली होंगे। बिग फोर वाले को थोड़ी ज़्यादा सैलरी अलॉट की जाती है। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टुक टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने अटेम्प्ट्स लगे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो ऐसा कुछ सैलरी का क्राइटेरिया है। बट हाँ, मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा बोल के कि salaries are very competent for both the courses and CPA is of great demand right now. US के अंदर टैक्स अकाउंटेंट्स की एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारा काम यूएस से आउटसोर्स होता है एंड दैट इज द रीजन इंडिया के अंदर CPAs की, एनरोल्ड एजेंट्स की डिमांड इंक्रीज कर रही है एंड जिसके कारण काफ़ी कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिल रही है। एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसके साथ में, आई हैव सीन ऑन वेरी लॉट ऑफ पोर्टल्स, जैसे जहाँ पे आपको जॉब ऑफर्स आते हैं, ऐसे पोर्टल्स पे मैंने कई बार देखा है कि आज की डेट में कई जॉब रोल्स के लिए बिग फोर्स, डेलॉयट यूएसआई, उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है वो होती है CA/CPA। सो बेसिकली दे नो दैट यू बोथ अ CA एंड अ CPA दोनों को ही अच्छी खासी नॉलेज है रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग ऑडिटिंग, रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रिगार्डिंग टैक्सेशन। तो देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स विच आर ओपन फॉर बोथ ऑफ देम। Sir, that was a very informative answer, I would say. I want to know, are employers in India valuing CPA more than CA right now? See, more than CA, less than CA मैं ऐसे कंपेरिजन नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज बोथ दीज क्रीडेंशियल्स आर esteemed reputed credentials in the field of finance, right? Okay. दोनों की ही बहुत डिमांड है। बट एज आई टोल्ड यू जस्ट व्हेन आई वाज आंसरिंग योर लास्ट क्वेश्चन कि यूएस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी शॉर्टेज ऑफ अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स है अभी। एंड इस बात को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आर्टिकल्स जो आपको इस बारे में बताएंगे। यूएस के कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन रह चुकी है ये लास्ट कुछ सालों के अंदर। Okay. सो बेसिकली यूएस का सारा टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग का जनरली काम आउटसोर्स होता है टू इंडिया, बिकॉज एज यू नो इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है जो काम करते हैं। सो वी आर वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसके कारण बिग फोर्स के अंदर डेलॉयट, KPMG, EY, PwC, इन कंपनीज ने तो अपने खुद के यूएस क्लाइंट विंग्स खोले हुए हैं। जैसे एक डेलॉयट है और एक डेलॉयट यूएसआई है जिसके अंदर सिर्फ यूएस क्लाइंटेल से डीलिंग चलती है। सो बेसिकली इंडिया के अंदर अब यूएस CPA की, यूएस CMA की, एनरोल्ड एजेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, बिकॉज यूएस से सारा काम आउटसोर्स होकर इंडिया के अंदर आता है। सो येस, the employers of India are valuing US CPAs a lot right now, enrolled agents a lot right now, ताकि जो भी आउटसोर्स काम यूएस से आता है उसको सही तरीके से डिलीवर किया जा सके। Sir, that actually made a lot of sense. So I want to know, like, students who are confused between both the exams, like what they want to pursue. So like what would you suggest to them? Okay. तो अगर किसी स्टूडेंट ने सोच ही लिया है कि मुझे अपना करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, मुझे अपना करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इन फील्ड्स के अंदर अगर मुझे मेरा करियर बनाना है, किसी ने ये बात सोच ली है, डिसाइड कर ही लिया है, देन आई थिंक CA और CPA दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हैं। CPA क्यों थोड़ा सा बेनिफिशियल है? बिकॉज आप CPA के क्रेडेंशियल को हासिल करके वो सारे काम कर सकते हो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कर सकता है, बट नॉट जस्ट इन इंडिया, आप 150 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर उस काम को कर सकते हैं। एंड CPA बनने के लिए एज आई टोल्ड यू 12 से 18 महीने लगते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू देयर इज नो आर्टिकलशिप पीरियड, यू जस्ट हैव टू क्लियर 4 एग्जामिनेशन एंड दिस ग्लोबल सर्टिफिकेशन, दिस पासपोर्ट टू द ग्लोबल करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस विल बी इन योर पॉकेट। तो आपके पास अगर इतना ही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर यू आर ईगर टू स्टार्ट अर्निंग, if you have responsibilities on your shoulders and you want to like support your family, you want to support yourself, you want to achieve financial freedom in a span of a shorter time span,
अगर आप एक शॉर्टर टाइम स्पैन में इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो आई थिंक विदाउट चेंजिंग द गोल ऑफ स्ट्रीम ऑफ जॉब आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी CPA को दे सकते हैं, आप CPA बन सकते हैं, एंड आप उसी चीज़ को जो आप इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट बन के करते, आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अ शॉर्टर पाथ, it's actually a smarter path with added benefits of global reaches, right? So CPA इस तरीके से beneficial है. That's a very practical way to look at it, sir. Thank you for your time and thank you for all the insights. Thank you so much for having me here. I'm always happy to help my students. Also, before we conclude this podcast, एक important announcement है मेरी for my users and my viewers. See, it's not just important to gain a certification which gives you global reach, but the most important thing is how do you choose the certification which is right for you. So basically our viewers can contact my team, contact the Eduvitals team and book a free career counseling session for themselves, जिसके अंदर हम उनकी इस बारे में हेल्प करेंगे सबसे पहले कि उनके लिए राइट सर्टिफिकेशन क्या है. We help them choose the right certification for themselves ताकि वो अपने करियर को ग्लोबल रीचेस तक लेके जा सके. एंड इस सर्टिफिकेशन को चूज करवाने में हम उनकी हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड. तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन को चूज करना चाहिए, एंड देन वी ऑब्वियसली प्रोवाइड द बेस्ट इन क्लास कोचिंग फॉर द सर्टिफिकेशन विच इज राइट फॉर देम.